اگر باہر نکلیں گے تو آپ کا حق آپ کو ملے گا. ان چوروں کو ہم نے پکڑنا ہے, اس سے اپنا حق لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں کا فیز 7 کو یہاں پر ہم آج فورا چوک میں آنے پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. فیز 7 کے رہائشی لوگ ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے دستے بازو ہیں, ہم ان کے انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ ڈیلر بھائی جتنی ڈیلر کمیونٹی ہے انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑی ہے. جتنے بھائی ہیں وہ یہاں پر آ جائیں, سارے فیز 7 فوارہ چوک میں اکٹھے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول. لیکن جب ان کے سامنے کوئی مخالف آ جائے, کوئی ان کے حقوق کے کھانے والا آ جائے, ان پر ظلم کرنے والا آ جائے تو وہ فولاد بن جاتے ہیں. آیا یہاں رہنے والے میرے آقا کے غلام تھوڑے نہیں ہیں, لیکن ہماری اس نرمی سے فائدہ اٹھایا گیا. ایسے لوگ جو کل تک مانگتے تھے آج وہ مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں. کل تک وہ سائیکلوں پر چلتے تھے آج وہ بازاروں پر چلتے ہیں. لیکن ہمارے پیسوں پر, ہماری حلال کی کمائی پر عیاشیاں کرنے والے یہ شاید بھول گئے ہیں ہم آج بھی آقا کے غلام ہیں. اور آقا کے غلام جس وقت ان کو پکارا جائے گا, جس وقت ان کو پکارا جائے گا وہ محمد بن قاسم بن کے آئیں گے. اتنا ہی یقین تھا لوگوں یہیں پر ڈٹ کے کھڑے رہنا. میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں جناب بابر ستی صاحب کو کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. فیز 7 کے رہائشی ڈیلر کمیونٹی, باقی جو ہمارے ٹاؤنز ہیں 4A ہو گیا, 4B ہو گیا, 5B ہو گیا, ان کے جہاں پر جو رہائشی جہاں پر آج اس احتجاج میں شریک ہوئے, میں انتہائی ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یونٹی کا فیز 7 کے ساتھ یونٹی کا مظاہرہ کیا. وہ انتہائی خراج تحسین کے لائق ہیں. اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ فیز 7 کا جو بجلی کا مسئلہ تھا وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 6-7 سال سے یہ لوگ آپ لوگ سروائیو کر رہے ہیں. یہاں پر لوگ بغیر بجلی کے انہوں نے یہاں پر گھر بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اوپر سولر سسٹم لگایا ہوا ہے. بغیر بجلی کے یہاں پر وہ رہ رہے ہیں. یہ ایک لمبی کہانی ہے, میں اگر وہاں پر بیان کروں تو یہاں پر کافی ٹائم لگ جائے گا. لیکن سب سے پہلے ہم نے بجلی کے حوالے سے ہمارے جو غوری ٹاؤن کے اندر پی ٹی آئی کی نمائندگی تھی, پی ٹی آئی کے لوگ تھے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. راجہ سجاد صاحب ہو گئے, ان کے ساتھ جو باقی ٹیم تھی انہوں نے بجلی کے حوالے سے ایک اہم رول ادا کیا. سارے لوگ اس میں, ہماری ٹیم بھی شامل تھی, آپ کے لوگ بھی شامل تھے. آپ لوگ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا کے لیے خورم نواز صاحب کے پاس جائیں. وہ یہاں کے NA52 کے اندر وہ ان کو اللہ یہاں پر لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, ان کو جا کے ریکویسٹ کریں کہ یہ ہمارے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے بجلی کی پابندی کی, یہ کسی طرح ختم کروائیں. خدا کی قسم بڑی مشکل کے ساتھ میں یہاں اعلانیہ اس بڑے مجمع میں راجہ خورم نواز صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں کی خاطر, اس ٹاؤن کی خاطر, نہ انہوں نے یہاں سے کوئی پیسہ کمایا, نہ ان کو کوئی اور لالچ تھا, لیکن وقت کے آپ یہاں پر لوگ کافی عرصے سے لیل و خوار ہو رہے تھے. انہوں نے کیبنٹ کے اندر سے اسپیشل منظوری لی اور غوری ٹاؤن کے اندر جو پابندی لگی ہوئی تھی وہ ختم کی. اس حوالے سے راجہ خورم نواز صاحب کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد یہی کمیٹی جو آپ فیز 7 کے اندر آپ نے ریاشوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی وہ ہمارے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ اب تو یہ بجلی کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو گیا, مہربانی کریں یہ مالکان جو کافی عرصے سے ہمیں لارے پہ لگا رہے ہیں کہ یہ CDA کی طرف سے پابندی ہے, یہ باقی معاملات کے اندر سے پابندی ہے, یہ ہیلو اجت کر رہے تھے, یہ ہیلے بانے بنا رہے تھے, تو مہربانی خدا کے لیے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ کروائیں. ان کو کہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو رحم کریں, اور ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے یہ ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں, یہ پوزیشن چارجز کی مد میں, یہ باقی اخراجات کی مد میں انہوں نے پیسے وصول کیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے, میں یہاں پر یہ الفن کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی ایز اے ڈیلر ہونے کے ناطے کہ یہاں فیز 7 کی بجلی کی ذمہ داری ہے ہمارے ذمہ ہے. اس میں کوئی سی پائپ پانی, ایک ریشو کا ایک پائپ پانی بھی نہیں بنتا تھا, لیکن یہ پہلے 50,000 روپے انہوں نے وصول کیے. اس کے بعد ایک دوسرا ٹھگ آیا, اس نے 1 لاکھ روپے کی مد میں یہاں سے لوگوں سے پیسے اٹھائے. اکبر انقلاب کے اندر 3-3 لاکھ
लाख रुपए उन्होंने डेवलपमेंट की मद के ऊपर यहाँ से इकट्ठे किए और उसने कमिटमेंट की कि आपको हम सिलेंडर भी दूंगा, आपको अंडरग्राउंड बिजली भी दूंगा, लेकिन अफसोस कोई एक वादा भी वफा न कर सका। आज अगर उनके मैं आप जब उनके पास हम जाते हैं कि ये जो आपने कमिटमेंट की थी ये कहाँ है, तो जनाब वो दूसरी तरफ बोल लेते हैं कि आप लोगों को शर्म नहीं आती। इतने लोग बूढ़े माए बहने उनके घर में जाके देखें, क्या आपकी माए बहने आपके घर में नहीं है? क्या हमारी माए बहने जो बिजली के बगैर यहाँ पर रात को गुजारती है, क्या आप लोगों का इस बात का एहसास नहीं है? खुदा के लिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मैं किसी एक बंदे को किनारा नहीं कर रहा, मैं इसमें चौधरी उस्मान साहब को शामिल करते हुए अब राजा अकबर साहब के उनकी जो मरहूम उनकी औलाद है जो उनको शामिल करते हुए चौधरी अब्दुल रहमान साहब को भी शामिल करते हुए तीनों को ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती छोड़ दो। जहाँ पर लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही, यहाँ मुतासरीन यहाँ पर खड़े हैं, हजारों के हिसाब से यहाँ के मुतासरीन यहाँ पर खड़े हैं जिनको अभी तक प्लान इशू नहीं हुए। हमारी जड़ से फर्क जो है वो आपकी रजिस्ट्रियों के हवाले से, आपकी बिजली के हवाले से, मुतासरीन के हवाले से खुदा की किस्म में उठा के कदम भरे मजमे लोग तरह तरह की हमारे ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं जी इनके साथ कोई शायद के बाद है, इनके पास कोई कंपनी के साथ लगा। हाँ, ये एक बात जरूर है, हमने यहाँ से रिस्क कमाया है, प्लाट बेचे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये हमारा लालच जरूर यहाँ पर जरूर है, बाकी इन मालकान के साथ हमारा कोई लालच नहीं है। एक बात जो आगे थी, उस्मान साहब यहाँ इस टाउन में आए, उन्होंने आके लोगों के साथ वादे वहीद की है बहुत किस्म के कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं, लेकिन उनको भी पूरा मौका दिया 2 साल उन्होंने, उनको भी हमने देखा सवाए इस मेन रोड के ऊपर जो ये पौधे लगे हुए हैं उसके अलावा उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, उन्होंने भी अपना वादा पूरा नहीं किया, पैसे उन्होंने भी खूब बनाए, आखिर में आके उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिए और कहा कि जनाब मेरा गोरी टाउन से कोई तल्लक नहीं है। फिर हमारी हम मजबूर हो गए, हमने पुराने मालिकों को जाके उनके दरवाजे खटकाए कि जनाब जिस बंदे को तुमने यहाँ पर छोड़ के गए थे, टाउन वाले करके गए थे, सारी लाइबिलिटी उसके जिम्मे लगा के गए थे, तो वो भी शख्स बड़ा जिम्मा हो चुका है, तो मेहरबानी करो इस टाउन की जिम्मेदारी को संभालो, इन लोगों से वादे किए हुए वादों को पूरा करो। उनका जब हम घर गए तो राजा जंगली अकबर साहब ने हमारे साथ ये अल्फन इकरार किया कि अगर चौधरी उस्मान साहब यहाँ पर टाउन से बड़ा जिम्मा हो गए तो हम अपने वालिद साहब की जितनी जिम्मेदारी उनको पूरी करेंगे। उन्होंने हमारे साथ ये अल्फन इकरार किया कि हमारी एक लाकी शरी और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि आपके लोगों को हक आपके हवाले किया जाए। उसके बाद चौधरी अब्दुल रहमान साहब के पास हम गए और उन्होंने हमसे शर्त रखी थी कि अगर चौधरी अब्दुल रहमान साहब भी अपना हिस्सा वापस लेते हैं तो इस शर्त पर मैं वापस इस टाउन का मैं चार्ज संभालूंगा, अदरवाइज मैं नहीं संभालूंगा। वो भी कह रहे थे कि मैंने उस्मान को जो है ना वो उसको दिया हुआ है। हमने चौधरी अब्दुल रहमान साहब को मजबूर किया, हमने कहा ये टाउन अगर चला सकते हैं तो आप चला सकते हैं, आपके ऊपर आपके नाम जमीनें इस टाउन के ये लोगों की आपने रजिस्ट्रियां करा के देनी है। उनको मजबूर करके हम वापस आए। हमने फिर एक एग्रीमेंट किया कि राजा अकबर साहब के बेटे और चौधरी अब्दुल रहमान साहब दो जो बंदे हैं जिन्होंने इस टाउन को जो लोगों को प्लाट बेचे हैं और उसके इवज उनसे पैसे वसूल किए हैं, तो ये जेन्युइन तौर पर जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। वो तीसरे बंदे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनाब वो तीसरे को हैंड ओवर कर दे और फिर वो चले जाए और फिर चौथा आ जाए फिर पांचवा आ जाए। नहीं, हम अगर राजा अकबर साहब के बेटों को और चौधरी अब्दुल रहमान साहब को लेके आए तो फैक्ट इसलिए लेके आए कि यही जिम्मेदार है इस टाउन के लोगों के। इन्होंने लोगों से वादे वहीद किए थे, इनके सफेद रिश्तेदारी को लोगों ने देकर यहाँ से टाउन के अंदर जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। फेज 1 से लेकर 7 तक अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है वादी हुई है तो उनकी बिहार पर लोगों ने यहाँ पर प्लाट खरीदे हैं। तो मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं वो उन्होंने इनको देखकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद जब हमने कंपनी इनके हैंड ओवर कर दी उसके बाद फर्दर हमारी बहुत सारी हमारे साथ इनके साथ कमिटमेंट हुई, सिटिंग्स हुई मुख्तलिफ वाले से। लेकिन जब ये भाई हमारे पास आए इन्होंने कहा कि हमारा बिजली वाला मामला हल करें, हम इनको रहमान साहब के पास लेके हमने कहा आप कमेटी बनाए, कमेटी इनसे मुज़ाकरात करें, जहां पर हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़ेंगे। इनके साथ आप लोगों का एक एग्रीमेंट हुआ है जो इनके पास मौजूद है। इन्होंने उस पर कहा है कि हम इतने % हम देंगे और आपके जिम्मे बनते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पैसे आपने इकट्ठे करने हैं। तो ये भाई इन्होंने ये राजा तहसीन के मुस्तक हैं, इन्होंने शब रोज मेहनत करके
यहाँ पर रिमांड नोटिस इशू करवाया और उसके बाद ये भाई हमारे पास आ गए कि इन्होंने ये हमारे साथ कमिटमेंट की थी, आप भी उसमें शामिल थे, आप उस गजे में शामिल थे, तो आप मेहरबानी करें आप हमारे साथ शामिल हो। मैंने उसी दिन कहा कि जनाब भाईजान अगर इज्जत से अगर मान गए, इज्जत से अगर इन्होंने जो आपके साथ एग्रीमेंट किया है अगर वो पूरा उतर गया तो हम इनको दोनों हाथों से थ्रूट मारेंगे और गले में इनको हार भी बनाएंगे। लेकिन अगर जो इन्होंने वादा खिलाफी की, अगर उस एग्रीमेंट के पीछे हटे तो इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, हम आप भाइयों के साथ खड़े होंगे। आप भाइयों के साथ हमारा ताल्लुक है, मेरा नाम बाबर सती है, ये सामने जगह मेरी है, यहाँ पर हमारी और भी इन्वेस्टमेंट है, हमारा भी मर्रा जीना आपके साथ है, तो हमने कहा इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े होंगे। चौधरी अब्दुल रहमान साहब को फोन किया, मैंने कहा भाईजान बात यह है कि आप मेहरबानी करें इन लोगों को टाइम दें और जो इनको साथ आपने कमिटमेंट किया उसको पूरा करें। उसके बाद टाइम रखने के बाद चौधरी अब्दुल रहमान साहब से हमारी 4 आपके फेज के जो जिम्मेदार हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और वहां पर जो बातें हुई मैं वो उनको दोहराने नहीं चाहता, आपकी वकालत मैंने की, हमारे भाइयों डीलर भाइयों ने की, हमने कहा इस तरह आपकी जान नहीं छूटेगी। आखिर में ये जो बात हुई उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला जो आप अल्फा नहीं मानो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी डालेंगे, जो डिमांड नोटिस के हवाले से जो पैसे बनते हैं वो मैं पूरा करूंगा। इसके दूसरी तरफ राजा अली अकबर साहब के जो बेटे हैं उनकी जिम्मेदारी वो पूरी उनको करनी चाहिए, चौधरी उस्मान की जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करनी चाहिए। तो अभी उसके बाद हमने कहा कि इनसे हम राब्ता करते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा था। लेकिन जब आप लोगों ने एहतजाज की कॉल चलाई, आप यहाँ पर आज आए तो उनको इस चीज बात का एहसास हो गया कि ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, तो मजबूरन वो आज आपके पास है। ये आपकी कामयाबी है, ये आप लोगों की कामयाबी है कि वही यहाँ पर आपके दरमियान मौजूद है। अभी आपने फैसला करना है कि आप किस तरह सेटिस्फाइड होते हैं, आप किस तरह मुतमईन होते हैं। हम इंशाल्लाह ताला दिन को कहेंगे, रात को कहेंगे, और अगर माली जानी जो भी तावन होगा इंशाल्लाह ताला डीलर कम्युनिटी की तरफ से मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ, आपके साथ इंशाल्लाह ताला हर किस्म का तावन इंशाल्लाह ताला आपके साथ पूरा करेंगे। यहाँ पर कोई बिकने वाला नहीं है, और जो अपना बड़ा तंजीर होगा जो किसी का सौदा करे, किसी के अमानतों का सौदा करे, तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मगरिबी हो रही है, बाकी लोग भी मौजूद हैं। राजा सुलेमान अकबर साहब यहाँ अंदर मौजूद हैं, आपकी ये कमेटी आए हुए हैं आपकी मदद की खातिर, और हमने कहा कि नहीं आपको इंशाल्लाह अकेले नहीं छोड़ेंगे। फेज 1 में रहता हो या फेज 7 में, सब भाई है, कोई कम्युनिटी है, उन सबका गोरी टाउन घर है। हमें एक घर के में अगर एक फर्द को तकलीफ है तो सबको तकलीफ है। तो बात अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मुश्किल से डेवलपर्स को यहाँ बुलाया और सलमान साहब को इस गारंटी पे लेके आए कि पुरअमन तरीके से बातें होंगी। मेन मसला है फेज 7 के लोगों की बिजली का मसला हल करना, और अगर वो आप आज का एजेंडे में एक ही बात है, अभी खुदा ना कुछ लोग अंदर जाके अपने दूसरे मसाइल हल करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उन सबको मना किया है कि कोई दूसरी बात आज नहीं होगी, आज एक ही बात होगी बिजली की, ठीक है जी, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह ये हमारा बुनियादी मसला, अगर ये हल हो जाता तो बाकी मसाइल कमेटी जाने, कंपनी जाने, ये डिफरेंट मसाइल है। तो अभी काफी देर मुज़ाकरात के बाद आपने एक जो अपनी कमेटी नामजद की थी उनको अपने अंदर बिठाया इनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से बहुत सारी बातें हुई जो आपकी रिजर्वेशन थी वो उन्होंने उसको सुना, और एंड के ऊपर हमने जो चूंकि अक्सर मैं खुद से ऐसी आदमी हूँ, ऐलानात बहुत ज्यादा होते जाते हैं, लेकिन असल में हकीकी मामला वही होता है जो पुरअमन हो। तो अब आखिरी बात मैं आपको जो खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उन्होंने आपकी इस पेमेंट का एग्री कर लिया, ठीक है जी। अब उसके तरीकेकार पे इंशाअल्लाह बात होगी, वो तरीकेकार जो है वो हमने इनके साथ तय किया है। वो अगले 2 से 3 दिन में ये इनका मसला है कि ये रहमान साहब से किस तरीके से बैठते हैं, वो भी एक हमने लायबल बना लिया और एक टाइम शेड्यूल तय हो गया है। तो इंशाल्लाह मंगल को एक अगली इनकी मीटिंग होगी जिसमें बाकायदा तौर पे आपकी पेमेंट जो है वो इनको हैंडओवर की जाएगी, आपकी कमेटी को, जो भी तरीका हो। तो उसके बाद अब मैं कहता हूँ कि आपके कमेटी के जो नुमाइंदे हैं ये खुद सामने तशरीफ लाएं और इस मुज़ाकरात के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तक
किसी कौम में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होता, उस वक्त तक उसके मामलात हल नहीं होते। ये आपने भी देख लिया और आज इसका वाज़ेह सबूत है कि आप अपने घरों को छोड़कर निकल के इस चौक पर आए हैं, तो मालकान भी इस चौक में आज मौजूद हैं, वरना ये आपको नहीं मिलते ना। आप इनके दफ्तरों के बेशक जितने मर्जी चक्कर लगाते रहे, ये आपको पकड़ाई नहीं देते। जब तक आपका इत्तेफाक और इत्तेहाद इसी तरह से रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल होते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपकी कमेटी और हमारी सुप्रीम काउंसिल मिलकर इंशाअल्लाह जो बाकी काम रहते हैं, जो बाकी पेमेंट रहती है, जब तक आपके पैसे अदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और इनके पेमेंट लेकर दम लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपना हक लेना हम आप सब लोग बखूबी जानते हैं। अगर ये हमारी शराफत थी कि इतना अरसा हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इसके बाद अब बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं है, और फिर जो और दिगर जिसके जिम्मे है इंशाअल्लाह ताला तीसरे फरीक को भी यहाँ लाएंगे और वो भी वो अपना हक अदा करेगा। वो कोई फरिश्ता नहीं है, ना ही आसमान से उतरी हुई कोई और मखलूक है जो वो अपना हक देने से मुंह छुपाए और दूर जाकर रहे और हमसे वो भाग नहीं सकेगा। इंशाअल्लाह ताला वो हक भी वो उनसे लेकर रहेंगे हम। आज आपने जिस यकजहती का, अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने का और अपने तमाम मामलात को हल करने के लिए जो आवाज उठाई है, उस पे आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसके साथ साथ वो लोग भी जिन्होंने कमाल सत्ती, बाबर साहब, बाकी सरदार शकूर साहब, बाकी दोस्त अहबाब जितने भी हैं, इन्होंने जो किरदार अदा किया, उस किरदार को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन सबसे मुतासिर कुन जो बात है वो आपका ये सदर और आपकी वो तंजीम जिसने जो अल्फाज यहाँ पे अदा किए वो अल्लाह के फजलो करम से उससे दुगनी जुर्रत के साथ अंदर जाके अदा किए और अपने हुकूक की बबांगे दोहल आवाज बुलंद की। ये आपके लिए भी बाइस फख्र है और इन लोगों की जुर्रत, बहादुरी और दलेरी को जो आपके हुकूक के लिए इन्होंने आवाज बुलंद की, उसको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। इसके साथ साथ चंद बातें जो मेरे इंतहाई मोहतरम भाई, छोटा भाई है बाबर सत्ती साहब, इन्होंने की, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैं पीटीआई का वर्कर भी नहीं हूँ और पीटीआई से मेरा ताल्लुक भी नहीं है, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। यहाँ पे सियासी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन इसका क्रेडिट जो है जहां हमारे एहतजाज को जाता है वहां खुर्रम नवाज को भी जाता है और उसकी टीम को भी जाता है। लेकिन तालियां यहां रुकती नहीं हैं। 22 जून को इनका 2022 को आपका ऑर्डर जो था वो खत्म होना था, तो उसमें इन दो भाइयों ने मेरे साथ राब्ता किया। फौरी तौर पे ये चेक शहजाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में पहुंचे, वहीं पे हमने एक्शन लिया और इस 22 जून के 2022 का जो ऑर्डर था कि यहाँ इसके बाद आपके नहीं लगेंगे, बंद लगेंगे, हमने एक्शन लिया और ये लामुतनाई अरसे के लिए हमने खुलवा दिए। और इसका क्रेडिट जहां पे इन दोनों को जाता है वहां पे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और चौधरी रिफत को भी जाता है। हमने यहाँ पे पार्टी नहीं खेलनी है, बल्कि मैं जिस पार्टी में हूँ, बाबर सत्ती जिस पार्टी में, राजा सजाद जिस पार्टी में, या कमाल सत्ती जिस पार्टी में, हम गरीब लोग हैं। अपने हुकूक की आवाज बुलंद करनी है और अपने हुकूक या तो छीन के लाने हैं या फिर सही तरीके से लाने हैं। और अगर हमें हमारे हुकूक न मिले तो हम छीनना जानते हैं अल्लाह के फजलो करम से। और इसके साथ साथ ये आज जो बात हुई है, मुझे उम्मीद है राजा सलमान भी यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, ये कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह वाली बात अब मजीद बर्दाश्त नहीं है। ये गोल पास ना दिए जाएं। सुन रहे हैं तो सुने,
चौधरी रहमान साहब भी सुने, उस्मान भी सुने और ये अंदर सुन रहे हैं। ये मंगल वाले रोज इनके लिए आखिरी डेडलाइन है, ठीक है। उसके बाद इन कलीमुल्लाहों सलीमुल्लाहों को हम पकड़ेंगे, इनके बिलू से बाहर निकालेंगे और इनको बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा करके अपने हकूक इनसे छीनेंगे। उसके लिए नैब भी, FIA भी और इंशाअल्लाह अजीज पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी हमारे साथ खड़ी होगी और फिर देखेंगे हमारे हुकूक किस तरह कोई खाता है। हमने इनको बचाया है हर फोरम से। CDA के सामने हम खड़े हुए, रजिस्ट्रियों के मामले को हम सामने लेके आए और पूरे टाउन की बिजली बहाल हुई। और फिर CDA को आज तक किसी ने अगर डट्टा लगाया हुआ है तो रिहायशियों ने लगाया हुआ है। उस डट्टे को हमें खोलने पे मजबूर न करने दिया जाए, नैब को फिर हमें मजबूर बुलाने पे मजबूर न किया जाए। ये अगर हमारे भाई हैं तो भाइयों की तरह हमसे ट्रीट करें, अपने कमिटमेंट पे पूरा उतरने की कोशिश करें। जो ये बार बार लिख के देते हैं या सारे मामलात करते हैं तो उन पे इनको अपने पूरे अज़्म के साथ, पूरे हौसले के साथ और पूरी अपनी ज़बान के साथ उस पे पहरा देना होगा। न दिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला इज्तिमा फेज 7 का नहीं होगा, अगला इज्तिमा वही उसी तरह का होगा जिस तरह पिछली दफा हमने। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी पूरी सोसाइटी आपके साथ खड़ी है। जहाँ पे आपका पसीना गिरेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी कि हमारा खून भी वहां पे गिरे। और इस मायदे पे चूंकि इंतहाई मोहतरम और मुस्तनद किस्म के पुराने लोग इसमें शामिल हैं जो बतौर गवाह हैं, बतौर जिम्मेदार हैं। कमाल सत्ती, बाबर सत्ती, सरदार शकूर साहब, पूरी सुप्रीम इनकी प्रॉपर्टी डीलर्स की कौंसिल। तो अगर ये भी पैरा नहीं देंगे मंगल वाले रोज तो फिर आपकी सुप्रीम काउंसिल को हम दूसरी